Anas, welcome back to Fit the Lit. In today's session, we are going to cover the last chapter of the book Flamingo, that is Going Places. Yes, I finally did it. Yes, we finally did it. So let us begin with today's session without any further delay. As I said, we are going to cover the chapter Going Places written by A.R. Barton. In today's session, we will cover a brief summary and I'll give you some ultra pro tips. Ultra pro tips are the regions or the section of the chapter which are extremely important from your CBSE point of view, right? So let us begin and look out for the stars. The similar kind of theme is there in which chapter? फटाफट comment box में लिख लीजिए if you know it. तो ऑफ कोर्स कि आपकी सोसाइटी में एक प्लेस बन जाती है अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंसेस. ये एक ऐसी चीज है जो कि अनइंटेंशनली हो ही जाती है. यू कैन नॉट अवॉइड इट. विराट कोहली डिड बिकम अ यूथ आइकॉन, राइट? तो द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का टैग दिया गया था, द स्मार्टेस्ट. फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर. Let me give you a brief introduction about the chapter first. So, the chapter is a short story set in a working class environment. Now, working class environment, that means that it has some issues that will be raised with respect to class consciousness. कि जो lower middle class होती है या फिर जो हमारी low class होती है economically speaking, वो कैसे survive करते हैं, right? And how do they get on with their lives? कि वो कैसे अपना लाइफस्टाइल रखते हैं या फिर हाउ डू द किड्स फील कि वो एजुकेशन के मामले में एंड एवरीथिंग एल्स. फोकसेस ऑन एडोलेसेंट ड्रीम्स एंड फैंटेसीज. तो जैसे कि मैंने बोला कि वर्किंग क्लास फैमिली तो है बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द किड्स कि बच्चे कैसा फील करते हैं व्हेन दे आर एडोलेसेंट. सो ऑल ऑफ यू आर आल्सो एडोलेसेंट इन द टीनेज ग्रुप, राइट? तो देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस जो कि बच्चों पे डाली जाती है, बट व्हाट इट फील्स लाइक टू बी रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियली. कि आपको पता है कि आपका जो एक इकोनॉमिक क्लास है वो इतनी ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है दैट यू आर गोइंग टू लूज आउट ऑन वेरियस थिंग्स. तो तब कैसा फील होता है? दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट द चैप्टर डील्स अबाउट. Explores contrast between imagination and reality. This becomes the major theme of the chapter. कि कैसे एक छोटी सी गर्ल है सोफी, वो कैसे अपनी रियलिटी को एस्केप करने के लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है बार बार, राइट? So that becomes the central theme, imagination versus reality. Highlights dangers of unrealistic aspirations. So as I said कि आपका economic class जो होता है in society that decides the dreams. अब यही similar concept कि your dreams are limited by your economic capacity, your economic class. The similar kind of theme is there in which chapter? फटाफट comment box में लिख दीजिए if you know it. I'm going to give you only 2 seconds. अब इतने हो गए. So Lost Spring. Lost Spring is the chapter. The theme of dreams getting stifled by or dreams getting destroyed because of the economic restrictions, right? So Lost Spring. तो अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड किसी चीज में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि दो चैप्टर्स को रिलेट करते हुए, and one common theme, that is imagination versus reality, so that is Lost Spring and Going Places, क्योंकि दोनों ही restrictions के बारे में बात कर रहे हैं. But in Lost Spring we see a different kind of effort, you can say, जो कि realistic effort है. But here Sophie is continuously imagining and fantasizing in order to escape her reality. तो ये हमारा बैकग्राउंड है, अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. नाउ व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? एज आई सेड, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, यानी कि इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेल टू डू, इतने ज्यादा अमीर नहीं है, राइट? बट इतना है कि वो खा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गेट ऑन विद देयर लाइफ्स, राइट? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. दिस इज व्हाट आई सेड कि इकोनॉमिक कैपेसिटी उनकी बहुत लिमिटेड है. ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल. ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल का मतलब कि नो लग्जरी एज सच, कि वो लोग कहीं पे ट्रैवल में नहीं जा रहे हैं हर वीकेंड, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवीज और दे आर नॉट गोइंग टू मॉल्स फॉर शॉपिंग एवरी अदर वीकेंड. तो वैसा कुछ लग्जरी नहीं है, जस्ट दी ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल की जहाँ पे कि फादर वर्किंग है, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो वर्किंग है, द किड्स आर बेयरली गेटिंग देयर एजुकेशन डन जैसे तैसे करके, और फिर जैसे बच्चों की जो एक बेसिक एजुकेशन खत्म हो जाती है उसके बाद kids are also supposed to work. So that kind of lifestyle is there.
सोशल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। अब ये सोशल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स तो समझ में आता है कि इट इज बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, लेकिन सोशल कंस्ट्रेंट्स क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंसेस आपके एक सोशल या फिर यू कैन से सोसाइटी में एक स्टैंडिंग बन जाती है, इजंट इट? सो हाउ डज दिस फाइनेंसेस अफेक्ट द सोशल स्टैंडिंग? कि जैसे जैसे आपके फाइनेंसेस होते हैं उसके हिसाब से यू मिंगल विद द पीपल अराउंड यू, है ना? तो जनरली ऐसा होता है कि रिच क्लास likes to mingle और have friendship and relations with the other people who are rich, है ना? उन्हीं के साथ। तो रिच जो है वो जनरली रिच के साथ ही उठते बैठते हैं क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं, राइट? एंड दे कैन रिलेट टू ईच अदर मोर। तो ऑफ कोर्स कि आपकी सोसाइटी में एक प्लेस बन जाती है अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंसेस। ये एक ऐसी चीज है जो कि अनइंटेंशनली हो ही जाती है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, राइट? रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। एटमॉस्फेयर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड रूटीन। तो मतलब इफ यू टॉक अबाउट द होल कॉन्टेक्स्ट तो हमें ये पता चलता है कि यस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आल्सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मिंगलिंग, राइट? एक लोअर मिडिल क्लास रूटीन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, राइट? एंड डेफिनेटली ये हमारा बैकड्रॉप हो जाता है। देन लेट अस गो टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, introduction to Sophie. Now again, I have tried to cover all the pointers in the summary, जो भी हमारे important pointers है. So the chapter begins with Sophie, with the introduction of Sophie. So there is this scene जहाँ पे कि Sophie अपने friend Jenzi के साथ आ रही है and they are talking, right? तो हमें Sophie का introduction starting में ही हो रहा था. Teenage, she is a teenage girl, adolescent girl है, dreamy and imaginative, काफी imaginative है, काफी she has a lot of dreams, dissatisfied with ordinary life, desires fame, success and luxury. अब ये चीज वो बहुत बार चैप्टर में थ्रू आउट एक्सप्रेस करती है कि शी वांट्स टू हैव फेम। तो जैसे कि देयर इज दिस सीन जहाँ पे वो इमेजिन करती है कि शी इज सिटिंग ऑन अ बाइक विद हर ब्रदर जियोफ एंड they are trying to enter the world as if and the world is welcoming them, the society is welcoming them, so that kind of fame, then of course success and luxury, क्योंकि वो अलग अलग अपने लिए सोचती रहती है बार बार कि मैं इस करियर को चूज करूंगी, इस करियर पाथ को चूज करूंगी एंड ऐसे ऐसे करूंगी। सो ऑल दीज थिंग्स दैट शी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट रिप्रेजेंट्स यूथफुल फैंटेसी। ये हमारा मेन कोर पॉइंट है कि शी रिप्रेजेंट्स यूथफुल फैंटेसी, कि कैसे द एडोलेसेंट किड्स ट्राई टू फैंटेसाइज, ट्राई टू ड्रीम अबाउट देयर फ्यूचर कि हम तो ऐसा कर लेंगे इन द फ्यूचर, राइट? बट ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू बी रियलिस्टिक इन आवर अप्रोचेस, इजंट इट? अब अगर मैं कोई करियर पाथ चूज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई एक्सपर्टीज इन इंग्लिश, तो अगर मैं कल को बोल दूं कि यस इन 6 years आई एम गोइंग टू बी अ डेंटिस्ट या फिर आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट, दैट इज मतलब दैट इज हाईली अनरियलिस्टिक क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज के साथ मैच ही नहीं करता है। बट हियर शी इज डूइंग जस्ट दैट कि उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है एंड शी इज ट्राइंग टू टेक ओवर वेरियस करियर ऑप्शंस फॉर हर फ्यूचर, राइट? अब जो क्वेश्चन आता है हमारा सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर से, वो ये आता है कि व्हाट आर हर ड्रीम्स एंड हाउ कैन यू कॉल देम और हाउ कैन यू लेबल दोज ड्रीम्स एज अनरियलिस्टिक। तो अल्ट्रा प्रो टिप नंबर 1, राइट? wants to start a boutique. So सबसे पहली वो चीज क्या बोलती है? अच्छा, when they are discussing Sophie and Janzi, when they are discussing their dreams, सबसे पहले वो क्या बोलती है कि I'll open a boutique. तो boutique is like a fancy tailor shop. तो फैंसी टेलर शॉप वो कहती है कि मैं खोलूंगी एंड ऑफ कोर्स वहां पे मैं टेलर करके कपड़े दूंगी एंड द बुटीक इज गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस वन। प्लान्स टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, और वो कह रही है कि फाइनली मैं क्या बनना चाहती हूँ? फैशन डिजाइनर। नाउ थिंक अबाउट इट कि यस डेफिनेटली इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के साथ भी लोग अचीव करते हैं काफी चीजें एंड शी कैन ऑल्सो बी अ फैशन डिजाइनर इन फ्यूचर, लेकिन उसके लिए वो क्या रियलिस्टिक स्टेप ले रही है? कुछ भी नहीं, राइट? Imagines meeting a famous footballer, escapes reality through imagination. अब ये तो dreams lack practical planning. This is what I was trying to emphasize कि her dreams continuously lack practical planning. तो वो क्या बोलती है कि मतलब मैं काफी चीजें कर लूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बुटीक खोल लूंगी, मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, और आई विल बी एन एक्ट्रेस, पार्ट टाइम एक्ट्रेस, राइट? मैं वो भी कर लूंगी and somehow I will be able to manage or have some money in my hands. So her dreams lack practical planning. Although she dreams to have a boutique, a fancy boutique,
Then she dreams to become a fashion designer or maybe a part-time actress to earn money. लेकिन उसके लिए वो कुछ रियलिस्टिक स्टेप्स ले नहीं रही है, ना ही उसकी एजुकेशन उस तरीके की है, ना ही उसकी प्रैक्टिस उस तरीके की है. सो दीज आर ऑल जस्ट ड्रीम्स एंड फैंसीज जो कि वो unnecessarily time waste कर रही है this way, right? Let us move to point 3, the role of Gen Z, and this is ultra pro tip number 2. Now, why did I mark it as ultra pro tip number 2? क्योंकि Gen Z का character is exact in contrast to the main character Sophie. Sophie is all dreams, nothing else, right? No practical action. Gen Z is highly aware of her reality. तो उसको पता है कि she belongs to a certain economic class and उसको उसी के हिसाब से she is allowed to dream and she is allowed to do things or decide her future according to that. Sophie's friend and classmate. So who is Gen Z? She is a friend and classmate. Gen Z, practical, realistic, represents working class awareness. This is what I was talking about. कि Gen Z जो है एकदम contrasting character है of Sophie, right? Sophie जहाँ पे एकदम ही dreamer kind of person है, she is always lost in her fantasies. ये जो है काफी practical and realistic है. तो जब Sophie बोलती है कि I will open a boutique or I will become an actress or I'll have some other मतलब thing like fashion designing, तो वो इन सब चीजों के लिए बोलती है कि you know you need money for all of that. And she says कि definitely you'll have to work in the biscuit factory in future, right? She questions Sophie's unrealistic plans and predicts that she will have to work in a biscuit factory, जैसा कि उसके एरिया के काफी लोग कर रहे थे ऑलरेडी, राइट? सो शी सेज कि डेफिनेटली योर ड्रीम्स आर फाइन बट उनके लिए पैसे चाहिए एंड मे बी यूल हैव टू वर्क और एंड अप वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री लाइक ऑल द अदर किड्स इन द एरिया. डाउट सोफी स्टोरी अबाउट डैनी केसी. तो ये हमारा जो एपिसोड होता है कि सोफी टॉक्स टू जियोफ एंड सेज कि आई मेट डैनी केसी. सो हु इज डैनी केसी? डैनी केसी इज अ फेमस फुटबॉलर, राइट? तो और वो एक काइंड ऑफ यू कैन से आइकॉन, एडोलेसेंट आइकॉन बन जाता है. तो एडोलेसेंट आइकॉन मीनिंग जैसे कि देयर आर किड्स जो कि इतना अच्छा अचीव कर लेते हैं इन देयर फील्ड्स कि वो एकदम से ही people start or adolescents start worshipping them. For example, take the case of cricketers. Virat Kohli did become a youth icon, right? So the most eligible bachelor का tag दिया गया था, the smartest bachelor available, etc. etc. तो वो सब चीजें होती हैं, yes true. तो डैनी केसी में के केस में भी यही हुआ that he became a famous footballer and became a kind of youth icon, right? So there were girls who used to kind of worship. There were adolescent girls who used to kind of worship him. Then boys also used to take him as you know the epitome of expertise. तो उस लेवल का उसने अचीव कर लिया था फुटबॉल में नेम, राइट, एंड पॉपुलैरिटी. तो सोफी बिल्ड अप दिस स्टोरी, फैंटिसाइजेस दिस स्टोरी कि आई मेट डैनी केसी, राइट? तो जब वो डैनी केसी की स्टोरी सोफी जेन को पता चलती है तो जेन जी हाईली डाउट्स द रियलिटी कि मतलब ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? कोर आइडिया, जेन जी रिप्रेजेंट्स रियलिज्म दैट सोफी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट. तो एज आई सेड कि इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, राइट? द फैमिली कॉन्ट्रास्ट. द नेक्स्ट सीन इज दैट शी एंटर्स. अब वो लोग स्कूल से आ रहे थे, बात कर रहे थे करियर ऑप्शंस के बारे में. द नेक्स्ट सीन इज कि शी एंटर्स द हाउस. अब जैसे ही वो घर में घुसती है शी इज टेकन अबैक. वो एकदम से उसकी क्योंकि रियलिटी फेस करनी पड़ती है उसको, राइट? शी इज ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर एंड एक्ट्रेस और जो भी. एंड जब वो घर में घुसती है उसको अपनी रियलिटी पता चलती है, राइट? एंड द रियलिटी इज सफोकेटिंग. इट इज सफोकेटिंग फॉर हर, राइट? So the family contrast. Father is practical and realistic. Brother Geoff quiet and hardworking. Family grounded in reality. Again, the attitude of the family is also in contrast to Sophie, right? तो उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हम देखते हैं या मिलते हैं, फादर इज क्वाइट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. इनफैक्ट वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं काफी, राइट? एंड ऑल्सो द ब्रदर जियोफ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ही इज क्वाइट एंड हार्ड वर्किंग. सो ही इज अवेयर. अब यहाँ पे सोफी के साथ मतलब हाउ इज जियोफ डिफरेंट?
क्योंकि जैसे सोफी है वो तो सिर्फ ड्रीम कर रही है, बट जियोफ इज वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग. तो वी फाइंड दिस कॉन्ट्रास्ट कि जियोफ इज एक्चुअली टेकिंग एक्टिव स्टेप्स to change his reality. He has accepted his reality. Yes, we are poor, and then he has started working as an intern in some mechanic shop, right? तो वो सब चीजें वो सीख रहा है. He is hard working and he is quiet. Sophie disconnected from family mindset. तो उस particular scene में when we see that Sophie enters the house and she feels a suffocation, उससे क्या दिखाना चाह रही है author A.R. Barton, that she is actually disconnected from the whole family. She does not have that real connection with the family members क्योंकि कोई उसको समझ ही नहीं पाता, right? Conflict between fantasy and practicality. So who stands for fancy? Definitely Sophie, and practicality the family. इसी में हमारी जेंजी भी आ जाएगी. So everyone around her is actually practical, you can say, right? They are grounded in reality. उनको पता है कि उनकी reality क्या है, and they are doing their own work accordingly. Ultra pro tip number 3. So meeting with Danny Casey, imagine. अच्छा, let me just give you clarity. ये बच्चों को clarity बिल्कुल नहीं होती है कि how many times did actually Sophie meet Danny Casey या फिर कितनी बार उसने imagine किया. So let me just give you clarity on that point कि जो text में है वो 3 meetings है, right? The first one is this. Chronologically बता रही हूँ मैं. The first one is this and this is imagined. ये कहाँ पे मिलते हैं? वो लोग आर्केड में मिलते हैं. कहाँ पे? आर्केड में. So the first meeting happens in arcade. Then second meeting that is real. अब वो मीटिंग नहीं कह सकते उसको, मीटिंग नहीं है वो. Real is when Danny Casey is playing and she is watching a match, right? अब ऐसा नहीं है कि वो लोग स्टेडियम में गए हैं, they are watching it on television. तो वो भी रियल मीटिंग तो नहीं है, बट हाँ वो एक रियल सेटअप है when they all are together and Danny Casey is playing and they are watching the match. बट वो कहाँ देख रहे हैं? वो लोग घर में देख रहे हैं टीवी से, वो स्टेडियम पे नहीं गए हैं, राइट? देन सिमिलरली देयर इज द थर्ड मीटिंग जो कि अगेन पूरी फैंटेसी बेस्ड है, बाय द कनाल. सो these are the 3 meetings that take place in totality. इनमें से रियल कितनी है? रियल सिर्फ यही है, और वो भी वो टेलीविजन में देख रही है मैच. And then this is also fantasy, pure fantasy. This is also fantasy, right? These are the 3 meetings in chronological order. So let us move forward and try to understand the content now. So the first meeting, according to Sophie, the first meeting happens in an arcade. Now arcade is a kind of shopping complex. तो जैसे कि हमारे crossroads होती है ना, ये ऐसे, right? यहाँ पे shops होती है कभी-कभी. तो हम ये पूरे शॉप्स को या फिर इस पूरे एरिना को हम लोग आर्केड कहते हैं, राइट? ये आर्केड होता है. सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सोफी एंड डैनी केसी हैपेंस इन एन आर्केड अकॉर्डिंग टू द क्लेम ऑफ सोफी. अरे ये किसको बताती है? ये जियोफ को बताती है, राइट? कैसी supposedly spoke casually, shared story with brother, and who is the brother? Geoff. Builds imaginary details. तो वो सारी imaginary details बनाती है, right? For example कि वो जैसे आया, बड़ा casually आया and he spoke in a very gentle manner. और ना ही सिर्फ उसने gentle manner से बात करी, rather he was very excited to give the autograph, right? कि वो autograph भी देने के लिए एकदम ready था. But क्योंकि they did not have any pen or paper, तो सोफी autograph नहीं ले पाई, right? So this is the whole meeting. बट इसी के साथ वो सेकेंड मीटिंग का भी क्यों दे देती है, राइट? एंड व्हाट इज दैट कि सेकेंड मीटिंग क्यों होगी? बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू गिव द ऑटोग्राफ. तो शी सेज कि जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पे होगी अब उनकी? बाय द कनाल साइड, राइट? जहाँ पे कि ऑफ कोर्स वो उसको ऑटोग्राफ देगा. क्रिएट्स अ सेकेंड मीटिंग इन हर माइंड. तो ये क्या रियल होने वाली थी सेकेंड मीटिंग? नो. अब क्योंकि फर्स्ट ही हमारी फैंटेसी बेस्ड है तो वो सेकंड भी रियल नहीं है, राइट? ब्लर्ड लाइन बिटवीन ट्रूथ एंड इमेजिनेशन. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एकदम यू कैन से कि ब्लर हो जाती है द बाउंड्री बिटवीन ट्रूथ एंड इमेजिनेशन, क्योंकि उसने एक तो मीटिंग बनाई, साथ में उसने सेकंड मीटिंग का भी एकदम
वर्क तैयार कर लिया अपना। So this is the second, you can say, encounter, meeting or whatsoever. क्योंकि ये लोग सारे फैमिली इकट्ठा होकर क्या देख रही है? मैच, राइट? दैट डैनी केसी इज प्लेइंग ऑन टेलीविजन. फैमिली वॉचेज अ फुटबॉल मैच. स्टार प्लेयर टर्न्स आउट टू बी डैनी केसी, क्योंकि जो लास्ट गोल था वो डैनी केसी ही करता है, राइट? सोफी प्रिटेंड्स शी कैजुअली नोज हिम. तो यहाँ पे भी सोफी इज ट्राइंग टू फीड हर इमेजिनेशन. क्यों? क्योंकि वो क्या पोर्ट्रे कर रही है कि शी नोज हिम पर्सनली, अपार्ट फ्रॉम हर हिज टीवी अपीयरेंस. वो उसको पर्सनल लेवल पे जानती है. दिस इज व्हाट शी ट्राइज टू शोकेस. रियलिटी क्या है? क्राउड, स्टेडियम एंड डिस्टेंस. क्योंकि जो स्टेडियम है वो बहुत दूर है उसकी रियलिटी से. कॉन्ट्रास्ट फैंटेसी ऑन टेलीविजन एट होम. क्योंकि फैंटेसी है. What is the fantasy? That she is having a personal connection with the star football player Danny Casey, but ऐसा कुछ है नहीं. जो उसकी फैंटेसी है वो एकदम कॉन्ट्रास्ट है रियलिटी के, राइट? बिकॉज इन रियलिटी दे आर वॉचिंग द मैच ऑन टेलीविजन. चलो, लेट अस मूव फॉरवर्ड. अल्ट्रा प्रो टिप नंबर 4, सोफीज एस्केपिज्म. कि वो कैसे एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी के साथ अपनी रियलिटी को ही एस्केप करने की कोशिश कर रही है. अब ये एस्केपिज्म का जो पूरा थीम है ये एक और चैप्टर में है, एंड दैट इज इन विस्तास, राइट? द थर्ड लेवल. तो ये वाला जो थीम है, अब ऑल्दो इंटरटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसको आप कनेक्ट कर सकते हो उससे, राइट? थर्ड लेवल से. विजिट्स कनाल एरिया अलोन. अब ये कनाल एरिया, जैसे कि मैंने बताया, इट वाज अ काइंड ऑफ लवर्स मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे कि लवर्स आके बैठते थे इन द इवनिंग टाइम एंड दे यूज्ड टू हैव दिस क्वालिटी टाइम टुगेदर, राइट? तो वहां पे सेकंड मीटिंग होने वाली थी. द सेकंड मीटिंग दैट सोफी टॉक्ड अबाउट वो होने वाली थी, बट शी वेट्स देयर, वेट्स फॉर इमेजिन्ड मीटिंग. तो ऑफ कोर्स ये जो मीटिंग थी वो इमेजिन्ड ही थी, रियल तो नहीं थी. लिव्स इनसाइड हर फैंटेसी. वो इनफैक्ट इतनी ज्यादा अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है दैट शी इमेजिन्स फॉर अ फ्यू मिनट्स और सेकंड्स कि एक्चुअल में डैनी केसी कम्स एंड ग्रीट्स हर. तो इतनी ज्यादा उसके लिए रियलिटी एंड इमेजिनेशन वाला जो लाइन है वो खत्म हो चुकी है, वो ब्लर हो चुकी है, दैट शी इमेजिन्स इन रियलिटी कि डैनी केसी आ गया, राइट? रियलिटी स्लोली कन्फ्रंट्स हर. Finally, when he does not show up, the reality is apparent for her. She has to accept the reality कि वो नहीं आया. Again, वो second meeting वाली reality तो उसने accept कर ली है, but at the end of the chapter also, we are given an account from Sophie's mind कि वो first meeting तो पक्का ठीक, राइट? शी इज ट्राइंग टू डिफेंड हर फर्स्ट मीटिंग. ऑल्दो वो सेकंड मीटिंग तो फेल हो गई है क्योंकि उसकी फैंटेसी रियलिटी को कन्फ्रंट कर रही है. तो रियलिटी तो एकदम डिफरेंट है फ्रॉम हर फैंटेसी वर्ल्ड, फ्रॉम हर ड्रीम वर्ल्ड. तो वो तो होनी नहीं थी सेकंड मीटिंग, तो वो तो एकदम ही अनट्रू हो गया. बट वो स्टिल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर फर्स्ट मीटिंग को अपनी डिफेंड कर रही है कि डेफिनेटली ही वाज देयर, राइट? ड्रीम्स बिकम इमोशनल रिफ्यूज. क्योंकि वो जो लास्ट में वो जो फर्स्ट मीटिंग को डिफेंड कर रही है, दैट इज ओनली दैट इज द ओनली इमोशनल रिफ्यूज दैट इज लेफ्ट फॉर हर. कि लास्ट वो यही सोचती है कि यस, द फर्स्ट मीटिंग वाज रियल, हम लोग मिले थे, वी हैड दिस पर्सनल कनेक्शन, although he did not show up in the second meeting, but we had some connection. So what is the significance of this particular second meeting? Highlights the सेंट्रल थीम ऑफ इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी. ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द सेकंड मीटिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस. तो तभी मैंने एक प्रॉपर स्लाइड उस चीज के लिए डिवोट कर दी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेकंड मीटिंग. मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वो बाय द कनाल साइड है एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ लवर्स पॉइंट. वहां पे वो इमेजिन भी करती है कि डैनी कैसी आया, बट ऑफ कोर्स ही डजंट शो अप. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस होल सीन? इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी जो हमारा मेन थीम है उसको हाईलाइट कर रहा है. Then Sophie's reveals Sophie's deep desire to escape her ordinary life. She wants to be someone of substance. कि लोग उसको पूछे, लोग उसको जाने. ये जो पूरी मीटिंग है उसके लिए it was an attempt to escape her ordinary life. Fantasy can become a refuge from social limitations.
तो अब इफ यू थिंक अबाउट इट क्लोजली, वो ना ही सिर्फ एक इकोनॉमिकल जंप लेने के बारे में सोच रही है, शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट हरसेल्फ टू अ स्टार फुटबॉल प्लेयर, टू अ स्टार फुटबॉल प्लेयर। तो वो क्या कर रही है, वो अपनी एक सोशल रिस्ट्रिक्शन को, जैसे कि मैंने बताया कि द रिच जनरली हैव फ्रेंड्स फ्रॉम द रिच क्लास ओनली, राइट? तो वो व्हेन शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट हरसेल्फ टू अ स्टार फुटबॉल प्लेयर, वो क्या कर रही है, वो अपनी एक सोशल स्टैंडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, राइट? इट मार्क्स द मोमेंट वेयर सोफीज ड्रीम बिगिंस टू कोलैप्स। ये चीज मैंने लास्ट उसमें भी समझाई थी कि यहाँ पे उसका ड्रीम का जो इमेजिनेशन था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि शी हैज टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि डैनी केसी नहीं आया। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, द रोल ऑफ जियो। अब जियोफ जो है कम्स आउट टू बी अ कैरेक्टर हु इज रियलिस्टिक, हु इज हार्डवर्किंग, बट अगेन ही इज वेरी क्वाइट। तो वो ना ही अपने फादर की तरह स्ट्रिक्ट है, ना ही वो सोफी की तरह ड्रीमर है, वो समवेयर इन बिटवीन है। व्हाई? बिकॉज ही इज द सिंबल ऑफ साइलेंट रियलिज्म, कि वो समझता है, वो सोफी की कंडीशन भी समझता है, वो फादर की कंडीशन भी समझता है, राइट? वो तभी सोफी को कुछ नहीं बोलता कि यू कुड नेवर मीट डैनी केसी। वो मुंह पे बोल सकता था जैसे कि वो फादर बोलते थे या फिर जेनजी बोलती थी, बट ही डजंट साउंड लाइक दैट, वो इतना हार्श नहीं होता है, बिकॉज he understands, right? Sophie trusts Geoff deeply, sees him as connection to the wider world. तो बार बार वो जियोफ को एज पार्टनर इन क्राइम सोचती है कि वी विल बी टुगेदर एंड वी विल अटेन फेम समहाउ, वी विल डू समथिंग वंडरफुल इन द फ्यूचर। वो बार बार मतलब जियोफ को एज हर पार्टनर लेके चल रही है, एज अ कंपेनियन। चेज ड्रीम्स ओनली विद हिम, जियोफ लिसन्स बट रिमेन्स प्रैक्टिकल। तो वो उसको बार-बार डाँटता नहीं है, वो समझता है उसकी डिज़ायर टू एस्केप, राइट? सो ही इज़ द वन हू इज़ लिसनिंग क्वाइटली, ही इज़ द वन हू इज़, you cannot say supporting, but he is there to listen, to look after her, right? That is what Geoff's role is. So silent realism. Stay tuned for session 2 of Going Places, where I will be discussing the 5 major themes that are important from CBSE examination point of view from this particular chapter.